Hey there, this is Pransh Verma and let's get started our next lecture. Okay, और अपन लोग इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में अपन लोग क्वेश्चन ही करेंगे. ठीक है, जैसे कि अपन लोग पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कोलिजन, है ना. कोलिजन इज ऑफ 3 टाइप: इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन. प्लास्टिक कोलिजन वॉज कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन. ओके, मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई कि द इन elastic collision, the conservation of momentum and the conservation of kinetic energy both are going to be applied. Okay, or in the inelastic collision only the conservation of momentum going to be applied. Okay, okay, and the ratio of restitution is less than 1 and greater than 0. Okay, in the last collision, that is completely inelastic collision or the plastic collision, in that collision the ratio of restitution will be 0. Okay, and both bodies will after collision will go together. Okay, thus they stick together. ये वर्ड यूज़ करते हैं आप लोग ज़्यादातर इसमें. ठीक है, और जो भी होगा इस तरीके से उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपन लोग बढ़ेंगे आगे. ओके, तो जनरली इन इलास्टिक कोलिजन्स में या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, और कुछ नहीं है, और तो सब बड़ा चंगा है, दुनियादारी बहुत बढ़िया चल रही है. द क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज. ओके, गेट कोलाइड इनइलास्टिकली. ओके, टू ईच अदर. बहुत बढ़िया. एंड आगे क्या है कि द मास ऑफ द बॉडीज इज 5 kg and 3 kg respectively. Okay, and the initial velocities of the bodies is 12 meter per second and 5 meter per second in same direction. It is given in the same direction. Okay, so or the ratio of restitution is also given as 0.7, that is less than 1 but greater than 0. Okay, and also find the loss in kinetic energy. Just do one thing, like कि भैया आपके पास क्या क्या चीज़ है, तो यू हैव रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन. रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब है, सबसे पहले तो इसकी फिगर बनाओ. क्वेश्चन की फिगर जो होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है आपके लोगों के लिए समझने के लिए. दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज U1, दिस इज U2. बोथ आर इन सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन. दिस इज M1, दिस इज M2, दिस विल बी V2, दिस विल बी V1. ओके, though the formula of ratio of restitution was I think so it was velocity of separation to that velocity of approach. It was the formula, है ना. तो velocity of separation क्या होगी? V2 minus V1. It is V2 minus V1 and velocity of approach will be U1 minus U2. That is given as 0.7. That is given as 0.7. From here you can find the value of V2 minus V1. That will come equal to 0.7 into U1 minus U2. That is the thing. Or you can find the value of V2 will become equal to 0.7 into U1 minus U2 plus V1. Okay, that is the thing which comes from ratio of restitution, Newton's law of collision. Okay, now now apply the conservation of momentum. What was the conservation of momentum? Conservation of momentum. What is the conservation of momentum? Initial momentum equal to final momentum. What is initial momentum? M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2. That is the final momentum. Okay, or we have already given as U1 and U2, that is equal to 5 and 3. Oh sorry, 5 and 3 नहीं, कहाँ गया? ये रहा 12 and 5. 12 and 5. So you can put the value here, 12 and 5. 12 and 5, that will come equal to 17 and that is V1. Okay, 12 and 5 come equal to 17. 17 into 0.7. How will it come? 0.7 into 17 plus V1. How will it come? 17 सते कितना होता है? 17 6 के 102. 17 100. कई बच्चे कह रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो आप. It will come equal to 11.9. 11.9 plus V1. This will be the value of V2. 11.9 into plus V1.
Okay, I just use the values that is given in the question. Okay, so now here put the value of m1 is equal to कहाँ है 5 kg, u is equal to 12 plus 3 into 5 is equal to यहाँ पे 5 v1 plus 3 v2. okay, now 12 into 5 that is called 60. okay, और 60 प्लस ये क्या आएगा 15, तो 60 plus 15 that will come equal to 75. and here m v1 plus 3 v2, 5 v1 plus 3 v2. okay, now just put the value of v2 from here, that is equal to 11.9 plus v1 है ना, 11.9 plus v1. put the value of v2 here. okay, now then you will get the value 75 equal to 5 v1 plus 3 into 11.9 plus 3 into v1. this will come, टोटल में मल्टीप्लाई होगी ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगी इस 3 की v2 की जगह. ओके, नाउ दिस इज 3 v1, दिस इज 5 v1, सो दैट विल कम इक्वल टू 5 and 3 8 v1, और ये उधर जाएगा 11.9 12 36 हो जाएगा ना ऑलमोस्ट. इसको आप 12 बोल सकते हो, 12 बोल सकते हो. 11.9 अप्रॉक्सीमेटली 12. ठीक है, सो आप बोल सकते हो. यहाँ पे नहीं बोलना चाहते, एकदम एक्यूरेट निकालना चाहते हो, एकदम एक्यूरेट निकाल लो. मेरा क्या है, ये कितना आ जाएगा 35.7, कितना आ जाएगा 35.7, अप्रॉक्सीमेटली 37 ईयर और 36 ईयर. ओके, सो नाउ यू कैन से दैट 8 v1 विल कम इक्वल टू, आप बताओ कितना आएगा. 75 में से 35 गए, कितना बचा 40. ओके, और ये 0.7 है तो 0.7 और जाएगा 40 में से 39.3, और v1 कम इक्वल टू 39.3 divided by 8. it is approximately 4.9 meter per second. 4.9 that come equal to v1 की वैल्यू आ गई 4.9. now just use the value, I'm removing this here. okay, and now v2 is equal to, how much is v2 is equal to 11.9 plus v1. so put the value 11.9 plus how much is this 4.9. approximately आप काटोगे इसको डिवाइड करोगे 29.3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आएगा. उसको 4 बार काटोगे 7 बचेगा, 7 फिर पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा 73 है. ओके, तो 8 9 72. ओके, अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगा. ओके, उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे. यही तो सब करने हैं, यही तो दुनियादारी है, यही तो बचा है केवल दुनिया में करने के लिए, है ना. 9 9 18 और 4 1 5 6 ये 16.8. देखो, इनिशियल वेलोसिटी वाज 12 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड नाउ द फाइनल वेलोसिटी आर 4.9 मीटर पर सेकेंड एंड 16.8 मीटर पर सेकेंड. देखो, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है. ओके, और सबका सब चीज़ केवल और केवल एक ही चीज़ से डिपेंडेंट है, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है. किस पे है, रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन पे. ओके, दिक्कत कोई नहीं है. आज की क्लास के बाद आफ्टर दिस क्लास, मतलब ये आप क्लास देख रहे होंगे सैटरडे में, है ना, सैटरडे में देख रहे होंगे. तो ऑन मंडे we are going to solve some board numericals. ओके, अपन लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और बोर्ड के लेवल के कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे. आपने लॉस ऑफ मोशन का किसी भी बच्चे ने मेरे को अभी तक एक भी न्यूमेरिकल करके नहीं दिया है. ठीक है, और ये थोड़ा सा शेमफुल है मेरे लिए शेमफुल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ. ठीक है, मुझे ऐसा फील मत होने दो. प्लीज़ आप क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आपका नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है. ठीक है, सिलेबस आगे भागता जाएगा. मैं तो दौड़ाऊंगा सिलेबस को, घोड़े पे बैठ के मस्त दौड़ेंगे हम तो सिलेबस पे. लेकिन आपके समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगी ना. ठीक है, आपको समझ में आए, और आप समझोगे कब, जब टाइम टू टाइम आप पढ़ते रहो. ओके, प्लीज़ मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दो, मुझे भेजो.
ठीक है, चलिए उतारिए। पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम रह गई, हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा कैसे निकालना है और आप वहाँ पे कंप्लीट कर लेना उस चीज़ को। मैं भूल गया, मिस कर गया था उस चीज़ को, अचानक से मैं लिखता हुआ याद आया कि काइनेटिक एनर्जी तो लॉस किया ही नहीं। तो आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा के ई का, है ना, आप वहाँ से निकाल सकते हो। V1 V2 की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, आप भी खुद कर सकते हो। यहाँ पे मैं करके दिखा दूंगा। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन, मैं एक बार रीड अप कर देता हूँ क्वेश्चन कि ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 12 kg विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। मतलब जो सेकेंड बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, दैट मीन्स इट इज़ 0। ओके, द वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है, मतलब कॉलिजन के टाइम पे जो वेलोसिटी थी, ऑब्वियस सी बात है, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। ओके, नाउ यू हैव टू just have to do one thing, that find the velocity, final velocities of the bodies, as E is equal to given to us as 0.4. okay, and also find the change in kinetic energy. okay, so do one thing कि भाई रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, रट डालो उसको तो। ओके नाउ 0.4 इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 की वैल्यू है 10 एंड U2 इज इक्वल टू है 0 एज द क्वेश्चन सेज द सेकंड बॉडी इज इन रेस्ट इनिशियली, सो इट विल go there. So V2 minus V1 comes equal to 4, that is equal to first equation. Okay, now the second, for the second we have to move forward for the conservation of momentum. Okay, conservation of momentum. So conservation of momentum said that कि हाफ m1 u1 दैट इज इक्वल टू 0 होगा वो तो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 m2 u2 की है, u2 इज 0, m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सा शॉर्टकट लेना पड़ेंगे आपको, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ब्लेंदी दिखेंगे आपको, ठीक है। m1 इज गिवन एज 10, u1 इज ऑल्सो गिवन एज 10। ओके, m1 इज गिवन एज 10 v1 प्लस m2 इज गिवन टू 12 एज v2। okay, 12 v1 plus 10 v1 plus 12 v2 that is equal to 100। okay, यहाँ से एक काम किया जा सकता है, वी कैन डू वन थिंग दैट लाइक कि यहाँ से आप लोग 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो इट विल बिकम 50, दिस थिंग विल बिकम 5 v1 एंड दिस विल बिकम 6 v2। नाउ यू हैव 2 इक्वेशन, v1 प्लस v2 v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू 4, v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, सो डू वन थिंग, आप लोग ये बहुत मैथ्स में करते हो, ओके, कि इसमें क्या कर दो, v1 कैंसिल हो सकता है बड़े आराम से, 5 की मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो 5 v2 एंड ओके, वी कैन डू दिस थिंग, यस वी कैन डू। ओके, आई मल्टीप्लाई विद 5 इन दिस इक्वेशन। ओके, सो सब में 5 की मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। ओके, now add the both equations. okay, 50 into 20 that will come equal to 70. okay, 5v1 will cancel out and 6v2 and 5v2 that will come equal to 11v2। okay, आपको अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे। 11v2 comes equal to 70 और v2 will come equal to 70 upon 11, that will come equal to I think so 6.33 6.36, ठीक है, और 12 हो जाएगा इन दोनों पे, दोनों बार आएंगे 6.36। ओके, या आप इसको 6.37 बोल सकते हो, या इसको आप 6.4 ही बोल दो तो बेहतर है, ठीक है। ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, ये काम चलता है। आप अप्रॉक्सीमेशन मैथ फिजिक्स में सीखे होंगे शुरुआत में इस चीज़ का, कि पॉइंट के बाद यदि आपकी जो वैल्यू है वो अच्छी खासी आ रही है तो उसको आप एक इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे 3.37 आया तो मैं उसको 0.4 लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट। ये मेरे को फिजिक्स अलाउ करती है इस चीज़ के लिए। ओके, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू
V2 minus V1 that is equal to 4. Okay, so I need value of V1, so V1 will come equal to V2 minus 4, so just subtract 6.4 minus 4, that will come equal to V1. V1 will come equal to 2.4 meter per second, and that is also meter per second. Okay, उतारो उसको और भी चेक करते भैया कि व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उतारो। चलिए, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में टिपिकलिटी बिल्कुल भी नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। हाफ m1 की वैल्यू 10, u1 की वैल्यू 10, उसका स्क्वायर भी है। ओके, बट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड बॉडी विल बी 0 एज इट इज़ इन रेस्ट। इट इज़ इन रेस्ट, तो उसको 0 लिख दो, माइनस हाफ m1 u1 की v1 की वैल्यू कितनी आई है 2.4 का स्क्वायर, 10 इंटू 2.4 का स्क्वायर, माइनस हाफ मास 12 है, और जो वैल्यू आई है वेलोसिटी की वो आई है 6.4 का स्क्वायर। What will be the value? 10 का स्क्वायर, how will it come? 100 into 100, sorry, 100 into 10 will come equal to 1000, and 1000 divided by 2, that will come equal to 500. Okay, now this thing, ये पंच कट गया, ये 2.4 का स्क्वायर है, हाउ द वैल्यू ऑफ 2.4 विल बी। देखो 24 का स्क्वायर होता है 484, आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। और 2.4 का कितना हो जाएगा 4.84। देखो यही जादू है, बस इन्हीं चीज़ों की समझ होनी चाहिए आप लोगों को। देखो व्हाट आई डिड 2.4, 0.4 हटाओ, अब इसका स्क्वायर करो, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 10 इंटू 10, 100। इसकी वैल्यू होती है 484 और ये है 100, पॉइंट दे दो उसको, बस काम करो। दिस इज द कैलकुलेशन। ओके, सो दिस विल बी कम इक्वल टू 4.84, 4.84 इंटू 5, 4.84 इंटू 5 कितना आएगा 5 चौक 20। ओके, एंड 8 40, 40 2 42, 2 4 और 5 चौक 20 और 4 24, ये तो उतना ही आ गया, ठीक है 24.2। ओके, एंड नाउ दिस थिंग, अब इसका स्क्वायर मुझे भी नहीं पता, 64 का स्क्वायर मुझे भी नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है भाई, कहाँ इतने सारे स्क्वायर्स याद थोड़ी रख सकते हैं। 24 का तो इसलिए याद है क्योंकि जनरली यूज़ हो जाता है, 64 यूज़ थोड़ी होता है। सो अपने को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 64 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 6 चौक 24, ओके, 6 चौक 36, 36 2 38, ओके। सो 6 5 4 9 2 8 10 3 1 4, 40.96, इसको 41 बोल दूँ मैं, 41 बोल दूँ। दिस इज 6 एंड दिस इज 41, दिस इज 41, दिस इज 6। ओके, सो हाउ विल इट कम, 6 6 चौक 24, 246। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है तो बता दो, नहीं है कोई समस्या, बस हो तो गया। 500 माइनस 24.2 माइनस 246। ओके, सो इसको ऐड कर लो आप, 0.2 460 2 4 2 6 6 और 1 7 and 2, this will be subtracted by minus 500। ओके, सो 270 में से 500 गई, कितना बचा 230, और 0.2 और जाए तो 230 में से 0.2 गया, कितना बचा 229.8 जूल। दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 229.8 जूल, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ईजी है। देखो मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मैथमेटिक्स का खेल है सारा, ठीक है। और फिजिक्स में यदि आप समझते हो कि मैं मैथ से भाग लूँगी या भाग लूँगा, ठीक है, आई कैन रन अवे फ्रॉम द मैथमेटिक्स
एंड आई कैन स्टडी द फिजिक्स। सो आपकी ये मतलब गलत चीज़ सोच रहे हो आप लोग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स कहाँ इट इज़ लाइक विडो, फिजिक्स इज विडो विदाउट मैथमेटिक्स। विडो क्या होता है, ठीक है, विधवा। ओके, वाइट साड़ी पहने हुए यदि कोई लेडी दिखे तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है, और बिना मैथमेटिक्स के तो वैसे ही है। ओके, मैथ्स तो जरूरी है आप लोगों को, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उतारो। ओके ना, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो प्लास्टिक कोलिजन की बात की गई है। ओके, क्वेश्चन क्या है, लेट मी रीड अप। ओके, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ओके, शूट a target with a velocity of 80 meter per second. Okay, if the target is initially at rest, okay, or initially in rest, okay, जो भी बोलो, या मैंने जो लिखा हुआ है, the target is at rest initially, okay, and the mass of the target is 20 kg, okay, 20 kg का टारगेट है, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। ओके, देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट। ऑब्वियस सी बात है, टारगेट जरा सा तो हिलेगा। ओके, देन द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टारगेट आफ्टर कोलिजन। ओके, आफ्टर द बुलेट हिट द टारगेट। ओके, ये टारगेट है। ओके, ये हमने यहाँ से बुलेट फायर की, ठा ठू ठप, बुलेट यहाँ पे घुसी, बुलेट इसमें घुस गई होगी, स्टिक हो गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, और उसकी वजह से यहाँ पे जरा सा तो चेंज आया होगा। ओके, भाई किसी को भी लगती है तो वो पीछे की तरफ रन करता है ना, सामने से मारोगे, गोली मारो तो वो पीछे ऐसे जाएगा, गिरेगा, गिरेगा कि नहीं। देशद्रोही देखिए कि नहीं देखी, देशद्रोही देखो ना यार, जाके देशद्रोही देखो, सब लोग जाके देखो, देशद्रोही में KRK का रोल देखो। ओके, केवल वही सीन देख लेना जिसमें KRK को गोली मारी है, ठीक है, क्योंकि पूरी मूवी तो आप झेल नहीं पाओगे, है ना, 4 घंटे की मूवी है, कहाँ तक इतना दिमाग लाओगे। अरे बहुत बेकार मूवी है, जिसको नहीं पता है देशद्रोही वो देख लो जाके, ठीक है। मेरे को 2 गाली दोगे, क्या सर क्या दिखा दिया क्या सिरदर्दी थी ये, ठीक है। और जिसको पता है वो कह रहा होगा कि सर बहुत सही बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन याद रखो, मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ। अब लॉजिकल बात कह रहा हूँ मैं कि जिसमें जो हिटिंग पार्टिकल है उसका मास बहुत छोटा है, द मास ऑफ द हिटिंग पार्टिकल और द कोलाइडिंग पार्टिकल इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू द टारगेट। जो दूसरा पार्टिकल है ना उसका मास काफ़ी बड़ा है, 20 kg 10 ग्राम, 20 kg 10 ग्राम, व्हाट इज दैट। ओके, सुना, आपको कुछ नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना, कंजर्वेशन, बेसन का आटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो आजकल बैम्बूज की बहुत वो कर रहा है, प्रमोशन, है ना, देख रहा हूँ न्यूज़ में, बैम्बूज की कहीं मिठाई बना रहा है ना, और कई सारी चीज़ें प्रचार प्रसार कर रहा है। मैं आऊँगा उस तरफ, आसाम की तरफ, तो इच्छा रहेगी मेरी भी कि ये बैम्बू का क्या सिस्टम है ना, देखना। ठीक, चलिए हटाइए। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। तो मेरा जो शुरुआत में आपको पढ़ाने का मकसद था, टारगेट था, यही था कि मैं बार बार आपको फिगर ना बनाऊँ कर दिखाऊँ। एक बार हो गया, काम खत्म। अब मैं सीधा क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाऊंगा, कंसेप्ट अप्लाई होगा। ओके, दैट वाज माय टारगेट। So now M1 U1 plus M2 U2 that is equal to M1 plus M2 into V. Okay. Now in the question the value the things are given. 10 ग्राम है तो 10 to the power -3 करना होगा to make it in kilogram. Okay. Okay. The velocity is 80 meter per second. Okay. The initial momentum should be 0 of the second of the target. Why? The initial velocity was 0. It is in rest. Okay. Okay, now M1 plus M2, what will be the M1 plus M2? 10 gram, 10 into 10 power -3 plus 20, okay, into V, that is the thing you want. Okay, देखो यहाँ पे कितना छोटा मास है, तो इसको हम 20 ही लिख दें, कोई दिक्कत है? We can neglect them. Okay,
we can neglect this thing, or we can only write 20. Now here this is how much it will come. It will come 10 to the power minus, this will come 0.8. okay, calculation कर लेना, you will get the value. So now from here p will come equal to 0.8 upon 20. 0.8 upon 20. Is it? Yes it is. okay, so ये 2 को भेज दो ऊपर 10 to the power minus 1. okay, इस पॉइंट को भी ऐड आयो 10 to the power minus 2. this will be 4 into 10 to the power minus 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. 10 to the power minus 2 क्या होता है? आई थिंक सो सेंटीमीटर होता है. क्या होता है? सेंटीमीटर. ओके, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बोथ द बुलेट एंड द टारगेट, बोथ. ठीक है, ये वेलोसिटी दोनों की होगी. अच्छा, इसमें जो होता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और एक्सटेंड कर देता है. आपसे ये नहीं पूछता कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द टारगेट और फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. वो पूछता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. ये पूछता है फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. अब वो कैसे फाइंड करोगे? ये सोचो, वो कैसे फाइंड करोगे? देखो, the velocity, the final velocity of the bullet and also the target is 4 centimeter per second or 4 into 10 to the power minus 2 meter per second. okay, कोई दिक्कत? okay, and the initial velocity, ouch, the initial velocity of the bullet was 80 meter per second. okay, 80 meter per second. okay, if somebody asks you what will be the acceleration will be the change in velocity upon change in time, change in velocity into change in time, है ना. और कोलिजन होने में कितना टाइम लगा, इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, वो दे देगा आपको क्वेश्चन में. यहाँ पे मैंने नहीं दिया. ओके, if the time taken by the bullet in the collision is 2 seconds, so क्या हो जाएगा? 80 माइनस ये कितना आएगा? 0.04. 80 माइनस 0.04. ओके, अपॉन 2 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा? 96.96 सॉरी 96 अपॉन 2. दिस विल बी द एक्सेलरेशन. ओके, तो यू मेक टू नो नाउ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो डी एक्सेलरेशन होगा पहली बार, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल. ओके, second thing, the acceleration will be very large. instant acceleration आ रहा है, instant acceleration. अचानक से वेलोसिटी डाउन हो गई तो बहुत ही बड़ा डी एक्सेलरेशन होगा. acceleration will be negative always in these cases. acceleration will be very large in these cases. second, the third thing, due to the large acceleration there is a huge force. There is a huge force and which act only for a certain time period. बहुत ही small time period के लिए अप्लाई होता है force. so यहाँ पे क्या चीज़ आएगी? there will be a huge impulse will come into the picture. okay, impulse आएगा. क्या आएगा? impulse. ठीक है, impulse याद होगा ना, FDT या F डेल्टा टी, दोनों चीज़ पढ़ा रखी मैंने, है ना. तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, क्या है क्या नहीं है. तो महादेव की चिपक उतर गई. ठीक है, उतारो. द फोर्थ क्वेश्चन दैट यू आर वाचिंग, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 300 ग्राम स्ट्राइक्स ऑन अनदर बॉल ऑफ मास 5 kg प्लास्टिकली. ओके, given that the second ball is initially was in rest. okay, second ball initially was in rest. the plastic collision is there, so plastic collision के लिए conservation of momentum will be m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 into v. okay, now put the value. okay, m1 is equal to 300 gram, so 0.3 300 gram will be converted into kg by dividing 1000. okay, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.3 कैन राइट कर सकते हो आप लोग. एंड द वेलोसिटी okay, the velocity isn't given by me.
Okay, that is a mistake by me. Okay, the strikes on another block of mass 5 kg, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं 10 नहीं, मज़ा नहीं आएगा, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको करेक्ट कर लेना सब लोग, प्लीज ट्राई टू करेक्ट इट, कि द बॉल इज ऑफ मास 300 ग्राम स्ट्राइक टू एन अनदर बॉडी ऑफ मास 5 kg plastically with the velocity of 100 meter per second. The velocity of the first block is given as 100 meter per second. Now the second term will be 0 as it is in rest. Okay, now the final 0.3 plus 5, है ना, mass of the first block is 0.3, mass of the second block is 5 kg. Okay भाई, यहाँ पे एक चीज़ सीख लो आप लोग, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, यूनिट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा, आप मेरे से बोल रहे होंगे कि सर वहाँ पे क्यों आपने नेगलेक्ट कर दिया था 20 ग्राम और 20 kg में, 20 ग्राम को, ओ सॉरी 10 ग्राम को, तो 10 ग्राम एंड 20 kg देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बट 5 ग्राम और 5 kg एंड 300 ग्राम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे तो 5.3 हो जाएगा। 0.3 को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हाँ 0.03 को माइट बी पॉसिबल आप कर सकते हो, ठीक है, उसको आपको इजाज़त मिलेगी और मैं दूंगा आपको इजाज़त। यहाँ पे हो जाएगा 30, द वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5.3। ओके, और दैट विल कम इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, देख लो जरा, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा दो, 53 है। वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर एंड वीको क्रीम, ठीक है, वीको का ऐड कर दिया मैंने। 5 टाइम चलेगा ये, 5 5 25 और 30 5 5 15, मतलब 515, है ना, कितना आएगा, 265 आएगा, 3 35 बच जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ये सब आपको करने हैं, ठीक है, ये सब आपको करने हैं, मैं नहीं करने, मैं नहीं करूँगा। 5.6 टाइम, ओके, देख लेना, this will be the velocity. Okay, now you have to calculate the kinetic energy, change in kinetic energy. What will be the change in kinetic energy? That will be equal to half m1 u1 square minus m2 u2 square will be 0, है ना, plus m2 u2 square equal to 0. So that the final thing will come equal to m1 plus m2 into v square, है ना, is it? Yes it is. So now put the value, m1 is equal to 0.3 and v1 square that is equal to 100 का square माइनस हाफ 5.3 इंटू ये कितना है, कितना है 5.6 का स्क्वायर। ओके, हाफ विल गेट बी कॉमन। ओके, 100 का स्क्वायर दैट विल कम इक्वल टू 10,000, 10,000 इज मल्टीप्लाइड विद 0.3 दैट विल कम इक्वल टू 3,000। ओके, माइनस हाफ मैंने कॉमन ले लिया है, ये है 5.3, ये है 5.6 का स्क्वायर। 5.6 का स्क्वायर करो सबसे पहले, ठीक है, 6 छक 36, 5 छक 30, 30 और 6 सॉरी 30 और 6 3 33, और इधर 5 छक 30 0 और 5 5 25, 25 और 3 28, ठीक है। ओके, ये कितना जाएगा, 6 3 और 8 3 11 और 2 और 1 3। ओके, दिस विल बी 5.666 31.36। ओके, 31.36 गेट मल्टीप्लाइड विद 5.3। ओके, 36 को अपन लोग लिख देते हैं 0.4, ठीक है, 31.4 गेट मल्टीप्लाइड विद 5.3 दैट विल कम इक्वल टू 5, ये कितना जाएगा, 30 50 150 और 6 और है, 3 और है, मतलब 0.3 टाइम इसका और होगा, तो 15 31 90 0.9 ये आ जाएगा 0.9 के आसपास, 9 के आसपास और ऐड होगा, तो 159 160 के आसपास वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, 5.3 गेट मल्टीप्लाइड बाई 31.4। ओके, सो इट विल बी कम इक्वल टू ऑलमोस्ट कम इक्वल टू 160, सो ऑलमोस्ट कम इक्वल टू 160। 3000 सब्सट्रैक्टेड बाई 160 विल कम इक्वल टू हाउ मच, इट विल कम टू 2840। okay, so the value will be divided by 2 and 1 4
20. This is answer is in joule. As why it is in joule? Because it is the change in kinetic energy. तो इतना चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और ये कहाँ लॉस हो गया? ये हिट करने के टाइम में उसके अंदर एंट्री करने में या वर्क डन करने में, कुछ भी हीट की फॉर्म में करने में काम चला गया. ओके, ये उसमें वेस्ट हो गया, या हिट करने के टाइम में उसको एनर्जी देने के फॉर्म में चला गया. कई सारे फंडे हैं जो यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं. ओके, आज का लेक्चर, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं. ठीक है, लंबा लेक्चर होगा मुझे पता है आज. ठीक है, 50 मिनट के आसपास का हो जाएगा, 50-55 मिनट का. कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम. वी आर नॉट गोइंग टू अफ्रेड विद द लॉन्ग क्लासेस. ओके, हमें तो बैठना ही पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा लंबा. इसको उतारो, और इससे अगला क्वेश्चन मैं 2D पे कराऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन 2D कोलिजन. ओके, तो उसको भी कर लेना, और फिर हम बोर्ड के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, उतारो उसको. So let's see here, there is the 2D question. Okay, question on based on the 2D concept. Okay, what is the question? Let me repeat it. Okay, कि a ball of mass 50 gram strikes with another ball of mass 60 kg, 60 gram with a velocity of 5 meter per second. Okay, if after collision, after get collide, okay, the first ball bend at an angle of 30 degree with the x-axis, and the second ball is bend at an angle of 60 degree with the x-axis, with the same axis. Okay, then find the final velocities of the bodies. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड हो गया क्योंकि इंक खत्म हो गई थी. ओके, सो इसीलिए मैंने ये भी बोल दिया. देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज. ओके, बाय मिस्टेक मैंने दूसरा में आगे उठा दिया था. ओके, सो नाउ व्हाट इज द थिंग्स. आपको याद होगा ना ये. दिस वाज m1 m2 u1, इट इज़ 0, इट इज़ गिवन. ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये u2 0 है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है. तो इफ इट इजंट गिवन इन द क्वेश्चन देन इट इज़ 0. ठीक है, दिस इज 30 डिग्री गिवन क्वेश्चन में, दिस इज 60 डिग्री गिवन क्वेश्चन में. ओके, सो फिर से वही गलत था दिया. This component will become m1 sin 30. Okay, and this will become m2 sin 60. Okay, so as you know there is no initial momentum in y-axis, so m1 sin 30 will become equal to m2 sin 60. Okay, और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, लेट मी रिवाइंड इट, v1 एंड v2. ओके, यहाँ पे v1 भी तो आएगा. चलो वेलोसिटी दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं मोमेंटम दिखाने लगा था. ठीक है, तो दैट वाज अ मिस्टेक, आई कंप्लीटेड इट. यहाँ पे क्या होगा, v1 cos 30 और v2 cos 60. ओके, so from here you can find the value of v1 and v2. There is a relation between v1 and v2. Sin 30 will come equal to 1/2. m1 is given as 50 gram, so you don't need to change the unit right now. Okay, अब चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ग्राम में है, दोनों किस में है, ग्राम में, तो चेंज करने की जरूरत ना है. ओके, देयर इज नो नीड टू चेंज इट. ओके, दिस इज 60 ग्राम. ओके, द वेलोसिटी v2 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 आई थिंक सो. √2 से 2 मर गया, और दिस कम्स 0 ये भी गया. तो 5v1 कम्स इक्वल टू 6 √3v2. यहाँ v2. ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स सी हियर m1 u1 प्लस m2 u2. ओके, m1 u1 प्लस m2 u2. मैं इंक डाल दूँ जरा सा इसमें, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया इंक. हो आज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के, हो आज फिर किथे चलनी है. भाई इसकी तो वेलोसिटी 0 है ना, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा. कम्स इक्वल टू m1 v1 cos 30 प्लस m2
V2 cos 60, हाँ या ना, यही होगा. So here this is 50 gram and the velocity was with which velocity? U1 is given as 5 meter per second. Okay, यहाँ पे जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लिखा नहीं. Okay, 50 V1 cos 30 root 3 by 2. Okay, and here 60 V2 cos 60 by 1 by 2. Okay, 1 by 2 will get common. ओके, और उधर प्लेस कर दिए जाएँ या फिर आप डिवाइड कर दो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है. इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू यू. ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, 250, 250. ओके, एलसीएम लो 2. 50 रूट 3 V1 प्लस 60 V2, दिस गो टूवर्ड्स दिस, तो ये हो जाएगा 500. ओके, नो प्रॉब्लम विद दिस थिंग्स, नो प्रॉब्लम. ओके, मैं हटा दूँ, मैंने हटा दिया. नाउ लुक एट हियर, दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 500. 1 0 1 0 1 0 दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगी, है ना. यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 रूट 3 V1, यहाँ लिख दूँ 6 V2, और हियर इट विल कम 50. ओके, नाउ फ्रॉम हियर एज यू नो 5 V1 नहीं है, 6 V2 है. ठीक है, 5 V1 इज इक्वल टू 6 रूट 3 V2. 6 रूट 3 V2, 6 V2 यहाँ से मैं करूँ तो इट विल कम 5 V1 बाई रूट 3. दिस थिंग 6 V2 विल कम इक्वल टू 5 V1 बाई रूट 3. सो पुट द वैल्यू हियर. आपको ये अकल लगानी होगी आपको, और दिस थिंग्स विल कम फ्रॉम अ ग्रेट प्रैक्टिस. ओके, आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज यू नो. So it will come equal to 5 V1 by root 3. Okay, no problem. Okay, take LCM. root 3 इधर, तो ये कितना हो जाएगा? root 3 3. Okay, so 5 into 3 15 V1 plus 5 V1. Okay, or this will be 50. 15 V1 5 V1, how will it come? 20 V1. Okay, और root 3 को इधर भेज दो, 50 root 3. Okay, so from here 0 से 0 गेली, and V1 comes equal to 5 root 3 by 2 meter per second. 5 root 3 by 2. So though V2 will become equal to as 6 V2 is equal to 5 by root 3 V2, है ना, ऐसा कुछ था. ठीक है, just put the value here. 5 by root 3. Okay, into V1. What is the V1? V1 is equal to 5 root 3 by 2. root 3 गया. Okay, and this is the value of 6 V2. Okay, 6 V2 की वैल्यू थी ना ये, 5 by root 3 into V1 की जगह मैंने रख दिया. Okay, now it will come 25 by 2. Okay, so V2 will come equal to 25 divided by 2, और ये 6 भी नीचे आएगा तो 12. Okay, 6 दूनी 12. 25 divided by 12, how much it will come? आप खुद निकाल सकते हो, 2 point something आ जाएगा, 2.8 के आसपास, 2.08 मीटर पर सेकेंड. 2.08 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल. ओके, मतलब एक बॉल ऊपर जाएगी 5 by 2 रूट 3 की वेलोसिटी से, 5 by 2 रूट 3 की वेलोसिटी से. ओके, यदि आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहो तो इट विल कम 2.5 इंटू 1.7, 2.5 इंटू 1.7. ओके, सो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 point something आ जाएगी, 4 point something आ जाएगी. ओके, और द अनदर बॉल विल गो डाउनवर्ड. ओके, ऑब्वियसली बात है, डाउनवर्ड जाना पड़ेगा उसको. सो इट विल गो डाउनवर्ड विद दिस वेलोसिटी, 2 point something वेलोसिटी. ओके, सो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं. नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो यू कैन आस्क मी फ्रेंकली. ठीक है, बी फ्रैंक, बी फ्रीली. मेरे को कोई आपको मतलब ऐसा समझना कि नहीं कि सर ये तो डांटेंगे या वो करेंगे. ओके, हालांकि मुझे डांटना चाहिए क्योंकि आप लोग मेरी सुन नहीं रहे हो, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो. ठीक है, फिर भी तो क्वेश्चन करो अच्छे से, और कल को बोर्ड के क्वेश्चन हो गए. ओके, मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में, पूरे क्वेश्चन. चलिए फिर मिलते हैं. थैंक यू एवरीवन.